नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। मैं बंगाल की लड़की हूँ। क्या सच में बंगाल को बंगाल की ही लड़की चाहिए? बांग्लार में बांग्ला सত্যি निजेर मेয়েকে চায়। रेलवे लाइन से कुछ दूरी पर पड़ा मिला एक शव जिसके हाथ पैर थे कटे हुए। कि আমি বাংলার মেয়ে বাংলা সত্যি নিজের মেয়েকে চায়। भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पॉल ने घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा करने के बाद शुरू किया प्रचार। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा की प्रार्थी अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को पार्टी समर्थकों के साथ आसनसोल मां घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रचार शुरू किया। रविवार की सुबह पश्चिम बर्धमान भाजपा जिला नेतृत्व तथा कर्मी समर्थकों के साथ लेकर उन्होंने घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद आसनसोल के पूर्व पार्षद बाबुल सुप्रियो तथा आसनसोल के तृणमूल प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा पर व्यंग कसा। और आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ने के कारण आसनसोल लोकसभा का यह उपचुनाव घोषित किया गया है। इस दौरान अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि बचपन से हमारी संस्कृति रही है कि किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले माता पिता के पैर छूना और मंदिर में जाकर देवी देवताओं के दर्शन कर शुभ कार्य पर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तृणमूल से शत्रुघ्न सिन्हा और माकपा से पार्थ चैटर्जी को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री 2014 से जो कार्य करते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, यहाँ के लोग उन्हीं का विश्वास करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा है कि हमारी मुख्यमंत्री के लिए बंगाल से के बाहर से आया हर व्यक्ति बाहरीगत है। दीदी कहती है बंगाल निजेर मेगे चाय। मैं उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा बाहरीगत कहकर अपमान नहीं करना चाहती हूँ। बाकी लोग तो जानते ही हैं कि वो यहाँ से जीत भी जाता है तो यहाँ पर रहेगा नहीं। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंगाल निजेर मेके चाय। आज मैं कहूँगी कि आसनसोल वासी निजेर मेके चाय। इस दौरान जितेंद्र कुमार तिवारी, कृष्णेंद्र मुखर्जी, दिलीप दे, चैताली तिवारी, डॉक्टर अजय पौदार, अभिजीत आचार्य, आशा शर्मा, मोमेंद्र कुमार साव, सुप्रिया मिश्रा और कई अन्य लोग उपस्थित थे। ওনাকে কেউ গাইড করবে যে এখানে একটা ঘাঘরবুড়ি মন্দির আছে, সেখানে যেতে হবে। ওনাকে হয়তো কেউ বুঝিয়ে দেবে যে কল্যাণেশ্বরী মন্দির আছে, যেতে হবে। কিন্তু অগ্নিমিত্রা পলকে বোঝাতে হবে না কোথায় মন্দির, কোথায় ঘাঘরবুড়ি মন্দির, কোথায় আপনার আমাদের ইসকন মন্দির, কোনোটাই বোঝাতে হবে না। এবং শত্রুঘ্ন সিনহাকে আসানসোল চিনতে জানতেই 2 বছর লেগে যাবে। তো ন্যাচারালি আমরা এমন লোককে চাই যে আসানসোলকে চেনে, আসানসোলকে জানে, আসানসোলের আবেগকে মর্যাদা দেবে, আসানসোলের যে চাহিদা সে চাহিদাকে দিল্লির সামনে তুলে ধরবে, সেখান থেকে অর্থ নিয়ে আসবে, আসানসোলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিধানসভা ভিত্তিতে আপনারা 5টা বিধানসভায় হেরে গেছেন। এবারে কি মানে পুরোনো যে ঐতিহ্য যে এখানে তৃণমূল একবারও কিন্তু ইয়ে পাইনি, সে থেকে আপনার মানে আপনি বিধানসভা, এটা তো লোকসভা ভোট, তো লোকসভা ভোটে আমরা কি করেছিলাম সে ফলাফল নিয়ে আলোচনা করুন। লোকসভায় তো আমরা 2 লক্ষ ভোটে এগিয়ে আছি। লোকসভা ভোট আর বিধানসভা ভোট তো আলাদা। লোকসভায় তো এই লোকসভায় যদি অন্য কাউকে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে, সে গিয়ে কি করবে? দিল্লিতে লড়াই করবে, মোদিজির বিরোধিতা করবে। আমাদের তো এমন লোক চাই না, আমাদের এমন লোক চাই যে দিল্লিতে গিয়ে আসানসোলের জন্য অর্থ নিয়ে আসবে, এখানে অনেক ফান্ড আসবে, অনেক উন্নয়ন হবে। বারুই নদীর জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, এখানে মাস্টার প্ল্যান আসানসোল, তার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন আছে। আমাদের তো এমন লোককে চাই যে সে অর্থগুলো আনতে পারবে। যে প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে গালাগালি করবে, সেরকম লোককে নিয়ে তো আসানসোল এগোবে না। আপনারা নিজেরাই বলছেন যে এই সরকার কেন্দ্র থেকে টাকা আনতেই দিচ্ছেন বা নিতে দিচ্ছেন, তাহলে এটা কী করে সম্ভব?
না দেখুন, আমরা বেশ কিছু লোক জানে, ডাক্তার জানে যে পেশেন্টের কোন রোগের চিকিৎসা কিভাবে করতে হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি জানে যে আপনি তো দেখছেন যে অনেক প্রকল্প এমন আছে যেখানে রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছিল, আলটিমেটলি বাধ্য হলো তো কৃষকদের জন্য যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে যোজনা ছিল, প্রথমে তো রাজ্য সরকার বাধা দিয়েছিল, তারপর এমন জনরোষ হলো সেটা মানতে বাধ্য হলো। আসানসোলের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিজেপি যে লড়াই লড়ছে, এই লড়াইয়ে আলটিমেটলি তৃণমূল কংগ্রেসে বাধ্য হবে। মায়ের ভালোবাসা, মায়ের শুভেচ্ছা নিয়ে আজকে প্রচার শুরু করব। আগেবারও তাই করেছিলাম, 2021-এ বিধানসভার আগে মায়ের কাছে এসে আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম কাজ। মা আশীর্বাদ করেছিলেন, আসানসোলের মানুষ আশীর্বাদ করেছিলেন। এবারও আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ আশীর্বাদ করবে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে যেটা রাজ্যের শাসক দলের সবচেয়ে মূল বার্তা ছিল বহিরাগত। এবার আসানসোলে যিনি লোকসভা প্রার্থী হচ্ছেন তিনিও কার্যত আসানসোলের মানুষ নন, কি বলবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসলে বয়স হয়েছে তো, উনি আমারও মুখ্যমন্ত্রী সম্মান করি, কিন্তু বয়সের সাথে সাথে যা হয়, যে কথাটা বলেন ওটা দুদিন বাদে ভুলে যান। আগেবার আমাদের শেখালেন যে বাইরে থেকে যারা আসবে, আমাদের কার্যকর্তারা, আমাদের কর্মীরা, আমাদের নেতৃত্ব দিল্লি থেকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে, বিহার থেকে এলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কত কথাই না বললেন। বিজেপি হচ্ছে গুটকা খাওয়ার দল, টিকি রাখে, তিলক কাটে, কত কথাই বললেন। সেই কথাগুলো ভুলে গিয়ে চলে গেলেন উত্তরপ্রদেশে ভোট চাইতে, অখিলেশজির পাশে দাঁড়িয়ে ভোট চাইলেন। আর আজকে আবার এমন একটি মানুষকে প্রার্থী করে দিলেন যার আসানসোলের সাথে কোনো কানেকশনই নেই, যে 10টা তৃণমূলের কার্যকর্তার নাম বলতে পারবে না, যে আসানসোলের কি সমস্যা তার কথা বলতে পারবে না, তাকে করে দিলেন প্রার্থী। আর তিনি ভাবলেন যে আসানসোলের মানুষ তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। আসানসোলের মানুষ কোনোদিনই অ্যাকসেপ্ট করবে না। কারণ দেখুন, আজকে প্রার্থী হতে গেলে তার একটা আত্মিক যোগ লাগে, ভালোবাসতে হয় মানুষকে। আজকে আমি এখানকার মেয়ে, এখানকার পরিবারের মেয়ে, তারা জানে আমাকে ছোট থেকে আমাকে কোলে পিঠে করে বড় করেছে। আজকে আমি তাদের দুঃখে সুখে পাশে দাঁড়িয়ে এসেছি লাস্ট 1 বছর। বাবা ডাক্তার লাস্ট 55 বছর ধরে, সবাই চেনে। সেখানে বাড়ির মেয়ের সাথে কি আর বহিরাগতর কোনো কম্পিটিশন হয়? আজকে শত্রুঘ্ন সিনহাজি আসছেন, তাকে শুভেচ্ছা জানাই, তবে এখানে রাজনৈতিকভাবে কোনো কাজ উনি করতে পারবেন না। তৃণমূল বিধায়ক স্পেসিফিক একটি কমিউনিটিকে নিয়ে উক্তি করলেন, আর সেই কমিউনিটির প্রার্থী হলো আসানসোল, এই বিষয়ে কি বলবেন? কি অদ্ভুত না? আজকে যে দলের হয়ে আই এম শিওর যে মিস্টার শত্রুঘ্ন সিনহা সেটা জানেন না। আমি ওনাকে অনুরোধ করবো আপনারা একটু জানিয়ে দেবেন। উনি অন্ডালে নামলেই উনি যেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী মহাশয় কি বলেছেন বিহারি কমিউনিটির ব্যাপারে, সেটা যেন একটু শুনে নেন। যে দলের হয়ে উনি দাঁড়াচ্ছেন সেই দলের বিধায়ক কি নোংরা কথা বলছে, ছি 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 ছি। আজকে বোধহয় এই ধরনের নোংরা কথা না বললে, মহিলাদের আক্রমণ না করলে, ছোট না করলে, বিজেপিকে ছোট না করলে বোধহয় তৃণমূলের জায়গা পাওয়া যায়। মিস্টার বাবু সুপ্রিয় মহাশয় যে গানটা লিখেছিলেন সেটা আমরা বাজাবো, আমাদের খুব ফেভারিট গান। কালীঘাটে টালির ছাদ, সেখানে চোরেদের পাঠশালা। কালীঘাটে কে থাকে? দিদিমণি থাকে। দিদিমণিকে চোর বললো না কাকে চোর বললো কে জানে। তারপরে রাজ্য চালায় গুন্ডা। রাজ্য কে চালাচ্ছে? দিদিমণি চালাচ্ছে। দিদিমণি কি গুন্ডা এরকম কি বলতে চেয়েছেন? ছি ছি ছি, এটা কিন্তু খুবই খারাপ। টেবিলের তলায় পুলিশ লুকাচ্ছে, এইসব বাবুল সুপ্রিয়দা লিখলেন। লেখার পর সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এখন দিদি 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 আমাকে মেন 11-এ খেলতে হবে। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম, ওনাকে কিছু দিচ্ছিল না। আমরা খুব খুশি যে অ্যাটলিস্ট বালিগঞ্জে উনি টিকিট পেয়েছেন। তো যাই হোক, উনি যেরকম পালিয়ে গেছেন, উনি বলছেন না উনি নিজের মহিমাতে নাকি জিতেছিলেন 2বার। আর এবারে তাই এত যখন নিজের ওপর কনফিডেন্স, উনি এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কেন বালিগঞ্জে দাঁড়াচ্ছেন, এটা আমাদের সত্যি সবার প্রশ্ন। আর শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় আসুন, একটু ঘুরে যান না, একটু এদিকে আমাদের যারা। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 180012339933। 60 से अधिक लोग घायल। 60 से अधिक लोग के घायल होने की आशंका है। पुलिस ने कहा है कि उत्तरी केरल के इस जिले में वंडूर के पास शनिवार देर शाम एक फुटबॉल स्टेडियम की अस्थायी गैलरी ढह गई। पुलिस ने कहा है कि घटना की सूचना बंदूर और काली काबू के पास एक फुटबॉल के दीवाने गांव पोगोंडू से मिली है।
जहां 7 फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा है कि उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। पुलिस ने कहा है कि यह घटना रात करीब 9 बजे की है, जब जो स्थानीय टीमों के बीच 7वां फाइनल मैच खेला जा रहा था। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कथित तौर पर अस्थायी गैलरी में 2000 से अधिक दर्शकों को समायोजित किया गया था। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कॉय रोड में है। दामोदर नदी में बरामद 31 वर्षीय युवक का शव। सागतोड़िया से विकास प्रसाद के अनुसार सागतोड़िया फाड़ी पुलिस ने रविवार को 31 वर्षीय युवक मनोज खंडाइट का शव रविवार को डीसरगढ़ छिन्नमस्तिका मां घाट के करीब दामोदर नदी से बरामद किया। यह बड़ाकर के मुकुरिया पाड़ा का रहने वाला बताया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक मनोज खंडाइट होली खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ दामोदर नदी में नहाने गया था, जहां नहाने के दौरान ही वह डूब गया। उसका शव रविवार को सागतोड़िया फाड़ी क्षेत्र के डीसलगढ़ के पास दामोदर नदी में बरामद हुआ है। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुट गए थे। रविवार की सुबह तलाश में आपदा प्रबंधन टीम को नदी में भेजा गया। रविवार की सुबह करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। रेलवे लाइन से कुछ दूरी पर पड़ा मिला एक शव, जिसके हाथ पैर थे कटे हुए। रविवार सुबह रूपनारायणपुर रेलवे पुल के नीचे एक छत विक्षत शव मिला है। इलाके में कोहराम मच गया और फिर देखने गए कि मैदान के बीच में रेल लाइन से कुछ दूरी पर एक शव पड़ा मिला हुआ था, जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं। उसके पैर बोरे में थे। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ युवक रेल लाइन से शव उठा रहे थे। तभी रूपनारायणपुर बावरीपाड़ा के कुछ युवकों ने उन्हें देखा और पूछने गए तो शव को खेत में ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने शुरू में अनुमान लगाया कि शव को रेल की पटरी पर काटा गया था। कोई व्यक्ति शव को उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे इसकी पहचान पता थी। रूपनारायणपुर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। आसनसोल पोलो ग्राउंड में इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में शनिवार शाम आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा
इंडिया इंटरनेशनल ग्रेड ट्रेड फेयर का राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने उद्घाटन किया। इस मौके पर अड्डा के अध्यक्ष विधायक तपस बंदोपाध्याय, अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभू झा, मुकेश तोदी, मनोज तोदी, हरिनारायण अग्रवाल, आलोक धर, सतपाल सिंह कीर, शंकर शर्मा, सुरजीत सिंह मक्कड़ आदि मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए राज्य मंत्री मलय घटक ने कहा है कि आसनसोल में इससे पहले हमारे 4 व्यापार मेले हो चुके हैं। कोरोना के बाद पूर्वी भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा मेला फिर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र कभी अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी साइकिल फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री थी, हिंदुस्तान केबल्स, बैगन फैक्ट्री, कुल्टी की स्पेन पाइप फैक्ट्री, इंडियन ऑक्सीजन देश की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में एक थी। ये सब बंद है। रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ममता बनर्जी ने कुल्टी के रेल और सेल को मिलाकर नई फैक्ट्री की स्थापना की है, जो अभी चालू है। वायु श्रेणी की सुरक्षा। बस बराज बम्बई के नेतृत्व वाली सरकार ने रविवार 20 मार्च 2022 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उन सभी 3 न्यायाधीश को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिन्होंने हिजाब पंक्तियों के फैसले सुनाए हैं। उन्हें मौत की धमकी मिलने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विधान सेधा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें कुछ लोगों ने 3 न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. 24 मार्च को प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। प्रमोद सावंत के 24 मार्च को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने एक दिन पहले सावंत ने अपनी पार्टी के सहयोगी विश्वजीत राणे के साथ नई दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक राणा ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री सावंत, राणे और शाह के बीच बैठक गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 20 सीटें जीतने के कुछ दिनों बाद हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी NGP के 2 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ भगवा पार्टी तीसरे कार्यकाल के लिए तटीय राज्य में सरकार बनाएगी। गोवा के 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी से 20 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ भगवा पार्टी तीसरे कार्यकाल के लिए तटीय राज्य में सरकार बनाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. एंड वीरेंद्र सिंह को दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। एन वीरेंद्र सिंह को दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बाद भाजपा ने आज श्री सिंह को 2 और दावेदारों
विश्वजीत सिंह और युगनाम खेमचंद के बीच मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया। तीनों ने कल दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी, क्योंकि पार्टी ने चर्चा की थी कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू, जो मणिपुर के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, घोषणा करने के लिए राज्य की राजधानी इम्फाल पहुंचे। एक पूर्व फुटबॉलर और एक पत्रकार 61 वर्षीय श्री सिंह ने मणिपुर में भाजपा के अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि भाजपा ने तब औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की थी। विश्वजीत सिंह, जो शीर्ष पद की दौड़ में थे, वीरेंद्र सिंह की तुलना में लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं, लेकिन बाद वाले को 2017 के चुनावों के बाद शीर्ष पद से चुना गया था। भाजपा के लिए जिन्होंने राज्य को 60 में से 32 सीटों के मामूली अंतर से जीता था, इस मामले को चतुराई से संभालने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि प्रतिद्वंदी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले का आगाज। 30 से अधिक देश मेले का हिस्सा होंगे। हरियाणा में 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो चुका है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेले का उद्घाटन किया। वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण बहुप्रतीक्षित शिल्प कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। मेला ग्राउंड 43.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और शिल्पकारों के लिए 1183 वर्ग हर्ट्ज और एक बहुव्यंजक फूड कोर्ट है, जो आगंतुकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मेले का परिवेश महुआ, नरगिस, पांचजन्य जैसे रूपांकनों और सजावटों के साथ इसे विशिष्ट संस्कृति से जोड़ता है और इसके साथ ही स्वतंत्रता के 75 वर्ष की थीम के साथ स्वतंत्रता पदक, तिरंगे झंडे और स्मारक टिकटों के रूपांकनों और प्रतिकृतियों के साथ इसकी शोभा को बढ़ाता है। सूरजकुंड मेला अब विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता के साथ एक पर्यटक कार्यक्रम भी बन चुका है। मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से 9 बजे तक खुला है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. रूस में एक कला विद्यालय में बमबारी, जहां 400 लोगों ने ली थी शरण। मारियोपोल के अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सेना ने एक कला विद्यालय पर बमबारी की, जहां लगभग 400 लोगों ने शरण ली थी। स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को कहा कि स्कूल की इमारत नष्ट हो गई है और अभी भी लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इस बीच स्लोवाकिया की रक्षा मंत्री जारोस्लाव नाद का कहना है, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों वाली पहली बहुराष्ट्रीय नाटो इकाइयाँ उनके देश में जा रही है। नाद ने रविवार को कहा कि अगले ही दिन तबादले जारी रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने
मार्शल लॉ के तहत एकीकृत सूचना नीति के महत्व का हवाला देते हुए एक डिग्री पर हस्ताक्षर किया जो सभी राष्ट्रीय टीवी चैनल को एक मंच से जोड़ता है। यूक्रेन के निजी स्वामित्व वाले मीडिया चैनल ने अब तक 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद काम जारी रखा है। यूक्रेन के घिरे शहर निकासी शनिवार को 10 मानवीय गलियारों में से 8 के साथ आगे बढ़ी। उप प्रधानमंत्री इरीना विरेशचुक ने कहा है कुल 6,623 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 4,128 मारियोपोल में थे, जिन्हें उत्तर पश्चिम में जापोरिजिया ले जाया गया था। एपी ने बताया है कि रूस सेना ने मारियोपोल के पथ बंदरगाह शहर में अपने हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को भारी लड़ाई के कारण एक प्रमुख इस्पात संयंत्र को बंद कर दिया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने अधिक पश्चिमी मदद की गुहार लगाई है। इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल की नगर परिषद ने कहा है कि रूस द्वारा राजनीतिक बंदरगाह में शरणार्थियों के आने के बाद रूसी बलों ने पहले हफ्ते घिरे शहर में हजारों लोगों को बलपूर्वक निर्वासित किया था। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। Some stranger somewhere still remembered you because you are kind to them when no one else was. कोई अजनबी कहीं ना कहीं आपको आज भी याद करता है क्योंकि आप उसके प्रति दयालु थे जब कोई और नहीं था। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।